Hello students, today we will see again new topic number 6, dissolution of partnerships. Under this chapter we discuss how to dissolve our partnership firm, the meaning of dissolutions. But before we have to see introductions, meaning, definitions and some important terms of this chapter, dissolutions. Dissolutions word ये जो है, dissolve means to close the business, to wind up the business. It is called dissolutions. So what is the condition of dissolve or form of dissolutions? What is the effect of dissolution of partnership? इसमें और एक पॉइंट डिस्कस करना है, गुडविल और डिसोल्यूशंस. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द फर्म आर डिसॉल्व? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. अंडर दिस अकाउंटिंग प्रोसीजर we see two heads: simple dissolutions and dissolution for under insolvency situations. When insolvency situation, how to write our accounts when they dissolve our firm? How to write our accounts of simple dissolutions and dissolutions under the insolvency situations. ये दोनों में से एक के ऊपर आपको प्रॉब्लम होता है. We see the difference about these two situations, two heads. Accounting treatment open generally accounts as well as general entries into this topic number 6. इसके ऊपर आपको जनरल एंट्री पूछी जा सकती है. How to pass generalize the entry. Accounts, realization accounts, all partners capital accounts and cash optic bank accounts. If current account balance is given, we should be open again current account, loan account, deficiency account. We should also open into this topic when it is necessary, when the points is given into our question. So next point we will discuss pro forma of realizations accounts. How to draw the pro forma? Pro forma, why we prepare the pro forma? We simply calculate the answers into this pro forma. Pro forma of ledger accounts, realization accounts, all partners capital accounts and cash optic bank account. ये pro forma में देखने वाले क्या, how to create the realization accounts, how to realize our assets and liability into this pro forma, and partners current accounts, partners capital accounts and cash optic bank accounts. We should also prepare. So we should see the meaning of solvent and insolvent partners. What is solvent? Solvent का मीनिंग क्या है? Solvent किसे कहते हैं और insolvent किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस के अंदर आपको करना है. So solvent means we simply the meaning of that solvent. The partners whose asset is more than his liabilities. Solvent means क्या? पार्टनर्स जो होता है whose assets are more than his liability, it is called solvent partner. And insolvent partner उसके अपोजिट आपको लिखना है, उसे कहा जाता है पार्टनर्स whose liabilities are more than his assets. Insolvent partner means a partner whose liabilities are more than his assets. Liabilities से उसको ज्यादा उसको देना पड़ता है. मोर देन एसेट्स, एसेट्स से ज्यादा उसको देना ज्यादा होता है, एसेट्स उसकी कम होती है. इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन. उसे हिंदी में दिवाळखोर कहा जाता है या नादार, ये वर्ड उसको अनदर लैंग्वेज में कहा जाता है. सो बिफोर वी सी द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशंस. डिसोल्यूशंस का मीनिंग क्या है? इन द लीगल टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशंस हैज मल्टीपल मीनिंग्स. A word dissolutions come from the Latin word dissolutions. Dissolutions words come from Latin word dissolution. Dissolution means to close the business. In simple word, to wind up the business. व्यवसाय बंद करना, बिजनेस बंद करना, उसे कहते हैं dissolve. Dissolution of partnerships. So dissolutions come from Latin word dissolutions. It means to dissolving of something. Dissolution is the last stage of
क्लोजर ऑफ द बिजनेस, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अपना बिजनेस बंद करने की लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, अब सारी सिंपल सी बात है। जब एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर या एक्स वाई 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है फॉर एग्जांपल, और पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने डिसाइड किया कि डिसोल्यूशन करना है, डिसॉल्व द फर्म करना है, बिजनेस बंद करना है। तो बंद करते वक्त जो बिजनेस चलाने के लिए जो उनका कैपिटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो लोन्स उन्होंने लिए थे डिफरेंट वे से, आउटसाइडर पीपल से, वो आपको वापिस करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस आपका क्लोज हो रहा है हमेशा के लिए। इस सिचुएशन में क्या होता है फिर, ये टॉपिक के अंदर आपको लर्न करना कि एसेट्स जो आपने इन्वेस्ट किए, योर ओन कैपिटल जो है पार्टनर्स का, और बिजनेस चलाने के लिए जो अनदर लोन्स उन्होंने लिए, उस लोन्स को आपको क्या करना पड़ता है, आउटसाइडर पीपल से, जो मनी लेंडर से जो आपने लोन लिया हुआ है, आउटसाइडर पीपल से जो आपको लोन लिया है, जो क्रेडिटर्स आपके हैं, जो बिल्स पेपल आपके हैं, जो ये क्या करना पड़ता है, आपको रिफंड करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। फिर वापस किस तरह करेंगे आप, आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स है तो फंड्स आप प्रायोरिटी देंगे, या जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से जो आपने अमाउंट रखा हुआ है वो अमाउंट आप, जो आपने लोन लिया वो लोन लेंडर्स को, मनी लेंडर्स को आप क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो वो प्रोसीजर आपको देखना है इस टॉपिक के अंदर कि हाउ टू रिटर्न द आउटसाइडर पीपल्स लोन्स। फिर वो आउटसाइडर्स कौन कौन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। यानी जब बिजनेस आप क्लोज करने का डिसाइड करते हैं, ऑल पार्टनर्स, ऑल मेंबर्स कम टुगेदर एंड डिसाइड टू क्लोज द बिजनेस, डिसॉल्व द बिजनेस, वाइंड अप द बिजनेस, व्यवसाय बंद करना। उसके रीजन से अलग वो मैं आपको बताने वाला हूं। डिफरेंट वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अलग अलग वे उसके, जो आपका पार्टनरशिप फर्म क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो इसमें देखना है कि जो ये असेट्स आपकी है और जो लायबिलिटीज है, यानी आप बैलेंस शीट देखते हैं आपके उसी ईयर की, जब आपका फर्म डिसॉल्व करना है, वी सी द बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ द बिजनेस। उस बैलेंस शीट में पूरा आपको आपके बिजनेस का लेखा जोखा उसमें होता है, और उसमें क्लियर कट आपको मालूम है कि हाउ मेनी एसेट्स, हाउ मेनी लायबिलिटी यू हैव इन्वेस्टेड इनटू आवर बिजनेस। बिजनेस में अपनी लायबिलिटी कितनी इन्वेस्टमेंट की और एसेट्स कितने इन्वेस्टमेंट किए, उसमें पूरे डिटेल्स होते हैं। और आपके मनी लेंडर्स क्या है, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने आपके, टोटल एसेट्स कितनी है, आपके लोन्स कितने हैं, लोन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम, लोन गिवन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम, ये जो आपके पॉइंट्स है, जो आपने बिजनेस चलाते हो तो आपने जो फंड्स कलेक्ट किया हुआ है, कैपिटल आपने क्रिएट किया हुआ है, उस कैपिटल क्रिएट करने के लिए डिफरेंट वेज आपके होते हैं। उस डिफरेंट वे से आप क्या करते हैं, आप बिजनेस का भांडवल जमा करते हैं, कैपिटल जमा करते हैं। व्हेन वी डिसॉल्व आवर फर्म्स, जब आपका फर्म्स आप डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं हमेशा के लिए, टू क्लोज द फर्म और लाइफ टाइम और होल पीरियड, हमेशा के लिए आप उसको क्या करते हैं, क्लोज करने के सोचते हैं। तब आपको सोचना पड़ता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी है बिजनेस को। ऐसे सहजती से आप बंद नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो है उसमें प्रोविजन दी हुई कि आउटसाइडर की जो लायबिलिटीज है, जो आपके लोन्स है, वो आपको रिफंड करना पड़ता है, और उसके बाद में कुछ अमाउंट रही तो उस पार्टनर में डिवाइड की जाती है, उनको मिलती है। नहीं तो ऐसा वक्त आ भी सकता है बिजनेस के अंदर कि आपको बिजनेस लॉस में, तो आपकी प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी आपको जो लोन के अगेंस्ट आपको वो बेचना पड़ती है। इसलिए इस टॉपिक के अंदर आपको देखना है सॉल्वेंट पर्सन है, इनसॉल्वेंट पर्सन कौन है। एक आधा बिजनेस प्रॉफिट में उनको क्लोज करना है तो बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। वो आउटसाइडर की पूरा लायबिलिटी जो उनके आपको देना है वो आप दे सकते हैं, और जो बचा हुआ जो अमाउंट्स है लोन और आउटसाइडर की लायबिलिटी देने के बाद जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आप पार्टनर में डिवाइड कर सकते हैं। मगर इस टॉपिक में ऐसा एक फर्म होता है, या ऐसा एक फर्म हो सकता है कि जिसमें उसके एसेट्स ये कम रहते हैं और लायबिलिटी उसकी ज्यादा है। पूरे एसेट बेचकर भी वो देनेदार का देना नहीं दे सकता है। तो पार्टनरशिप 1932 का जो एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजन आपको दी, उस प्रोविजन के अनुसार जो आपने मॉर्गेज है, आपको एक तो आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी जो एसेट्स है वो मॉर्गेज करना पड़ेंगे, प्राइवेट एसेट्स, या वो बेचकर आउटसाइडर के आपको पैसे देना पड़ेंगे। ये टॉपिक का हमको आपको लर्न करना है।
टुडे वी सी अगेन द मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशंस, विच मीन डिफिनेशन ऑफ डिजोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स। So definitions mean as per Indian Partnership Act 1932 define the definition of dissolution। क्या definition आपको दिए पेज नंबर 206 के अब टेक्स्ट बुक में देखिए, एज इट इज आप उसका लर्न करेंगे उसके कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 ही डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशंस। Dissolution of the partnership between all partners of the firm called dissolution of the firm. It implies the complete breakdown of relations of partnership between all partners. Complete breakdown the relations. हमने हमेशा के लिए बिजनेस क्लोज करना, complete breakdown our business, to close the business, it is called dissolutions. Second definition the act, it is a process of ending official organizations or legal agreement. Legal agreement के द्वारा जिसे क्लोज अप किया जाता है उसे कहते हैं dissolutions. The dissolution of partnership firm indicate the discontinuation functions of the firm. Discontinuation of firm, ये functions आपके जो इनवर्ड आउटवर्ड परचेसिंग सेलिंग्स जो आप फंक्शंस आप करते हैं, जो कार्य करते हैं, पूरे कार्य हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। सो वी सी अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept into this topic, dissolution of partnership firm. We discuss now how to dissolve our firm, which types of accounts will be opened into this dissolutions. So the term of dissolution stand for discontinuations, dissolution of partnerships. Discontinuation of or partnership refer to change in the existing relations of the partners. According to section 39, सेक्शन 9 में जो आपको दिया है पार्टनरशिप एक्ट 1930 में सेक्शन 39 जो है उसमें जो डेफिनेशन आपने आप देखी, he defined the dissolutions of partnership between all partners of the firm is called dissolution of firm. क्या डेफिनेशन है? dissolution of partnership between all partners, उसमें पूरे पार्टनर्स आ गए, all partners of the firm is called dissolution of firm. Dissolution of partnership means रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ पार्टनर्स, जो रिलेशनशिप उसका होता है पार्टनरशिप का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये उसकी डेफिनेशन है। देन partnership firm business comes to end, it is said to be dissolution of partnership firm. Partnership business comes to end, उसे भी कहा जाता है dissolutions. And in the case of dissolutions, relationship between the partners comes to an end, it is also called dissolutions. And in short, to close the business, all partners are decided to close the business is called as dissolution of the firm. एक शॉर्ट में आपको कहना है to close the all business functions into this dissolution of firms. पूरा प्रोडक्शन है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा क्लोज कर देना, बंद कर देना, उसे कहते हैं dissolution of the firm. The word dissolutions is opposite to formations. जब कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो लीगल प्रोसीजर आप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप कलेक्ट करते हैं, फंड्स कलेक्ट करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं, शेयर्स आप इश्यू करते हैं फॉर्मेशन के वक्त। जब एखादी कंपनी का आप स्थापना करते हैं और एखादा कंपनी का आप डिसोल्यूशन करते हैं, एखादी कंपनी आप बंद करते हैं हमेशा के लिए, यानी डिसोल्यूशन वर्ड अपोजिट फ्रॉम फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अपोजिट का वर्ड है डिसोल्यूशन। फॉर्मेशन में आप क्रिएट करते हैं, डिसोल्यूशन में आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। फॉर्मेशन क्रिएट द कंपनी, बिजनेस आप क्रिएट करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको रन करते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है, जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसको आप क्लोज करते हैं। तो क्लोज द बिजनेस, स्टार्ट द बिजनेस एंड क्लोज द बिजनेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन हमेशा के लिए बंद करना और स्टार्ट करना, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्म
बंद करना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. टू क्लोज द बिजनेस इज कॉल्ड इन सिंपल वर्ड, टू क्लोज द बिजनेस, टू क्लोज द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. वो है आपका डिसोल्यूशन. तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस है कि इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स. पार्टनरशिप में इस बिजनेस का डिसॉल्व करने के बाद, बंद करने के बाद, व्हाट इफेक्ट इन आवर बिजनेस, व्हाट इफेक्ट इन आवर पार्टनरशिप्स, क्या इफेक्ट होते हैं उसका, क्या इफेक्ट हो सकता है. तो पहला इफेक्ट जो उसका होता है, द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर टू क्लोज. सेकंड, एसेट ऑफ द फर्म आर डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज ऑफ मीन्स सेल ऑफ. सेल आउट आपको करना पड़ता है पूरे एसेट्स. लायबिलिटी ऑफ द फर्म डिस्चार्ज. डिस्चार्ज करना है, पेडअप करना, उसे लायबिलिटी ऑफ द फर्म आपको पेडअप करना पड़ती है. एंड एनी बैलेंस लेफ्ट आउट आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स. जब आप पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है. पहला इफेक्ट आपका होता है टू एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर क्लोज डाउन. एक्टिविटीज ऑफ द फर्म ये पूरे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं. जब एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस के अंदर, वो एक्टिविटीज क्या होती है आपकी, क्लोज होती है. पहले व्हेन यू डिसॉल्व, वी डिसाइडेड टू आवर फर्म इज डिसॉल्व. आपका फर्म क्लोज करना है, टू एंड द बिजनेस, टू क्लोज द बिजनेस, टू वाइंड द बिजनेस. तो पहला इफेक्ट आपका होता है एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर क्लोज डाउन. सेकंड, एसेट ऑफ द फर्म आर डिस्पोज ऑफ. एसेट ऑफ द फर्म, एसेट्स जो आपके वो आपको क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ फर्म करते हैं, यानी उसको सोल्ड करते हैं. थर्ड, लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर डिस्चार्ज. लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ डिस्चार्ज, उसको क्या करते हैं, पेडअप करते हैं, उसको दे देते हैं. पूरी लायबिलिटी लोगों का देना है, बैंक कर का है, मनी लेंडर्स का है, क्रेडिटर्स है आपके, वो आपको पेडअप करना पड़ता है. पूरे बिल्स पेबल है आपके, जो आउटसाइडर आप कहते हैं उसे, उस आउटसाइडर का देना आपको इस डिसोल्यूशन में आपको रिफंड करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है. और एनी बैलेंस लेफ्ट आउट आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. कुछ लायबिलिटीज बाकी होगी ये देने के बाद भी, तो पार्टनर्स में वो डिवाइड की जाती है. और इस कंडीशंस में वो फर्म जो आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी कंडीशंस नहीं है आउटसाइडर के पैसे देने की, लायबिलिटी देने की, उसकी कंडीशंस नहीं. तो उसकी जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजन दिया है 39 के अंदर, 60 के अंदर, कि उसमें कहा गया 1932 में कि इस सोल्ड हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल कर आउटसाइडर के पैसे उन पार्टनर को देना पड़ते हैं. उसे फिर जो पार्टनर्स लायबल है दे सकते हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट पार्टनर, और जो नहीं दे सकते उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट पार्टनर. वी सी द टू वे ऑफ सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट पार्टनर्स मीनिंग इसके अंदर आपको देखना है. दैट पार्टनर्स आर लायबल टू पे द अमाउंट. जो दे सकता है अमाउंट उसे कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन, एंड द पार्टनर्स जो लायबिलिटी है वो दे नहीं सकते उसे कहते हैं इनसॉल्वेंट. मैंने इनसॉल्वेंट का मीनिंग आपको पता है. सॉल्वेंट मीन्स a partner whose assets are more than his liabilities. Whose assets are more than his liability is called solvent person. And you दे सकता है. Insolvent means उसके अपोजिट में उसका होता है. Insolvent person means a partner whose liabilities are more than assets. उसकी liability assets से ज्यादा है, यानी उसको assets उसके कम है, उसको देना ज्यादा है. 100 रुपए के एसेट से 150 रुपए को देना है, यानी 50 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसके अमाउंट से, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. एसेट्स उसकी 100 रुपए और उसको लायबिलिटीज कितनी उसकी 150 रुपए, तो 50 रुपए क्या उसको देना पड़ता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इनसॉल्वेंट पर्सन. और सॉल्वेंट पर्सन में क्या होता है कि उसके पास एसेट्स 200 रुपए और उसको देना 100 रुपए. एसेट कितने 200 रुपीज उसके पास है और देना उसको आउटसाइडर को 50 रुपीज है, 100 रुपीज है. तो ही शुड बी लायबल, he should pay the total amount of that person's that liabilities, the whole liabilities should be paid now. वो दे सकता है इसका, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन. इनसॉल्वेंट में उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद भी उसका देना नहीं खत्म होता है, उसे कहते हैं लायबिलिटी ऑफ दैट पार्टनर, जिसे कहते हैं इनसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर. ये होगा सर. इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको बताया कि जब डिसोल्यूशन आप करते हैं तो व्हाट इफेक्ट इन आवर पार्टनरशिप्स, आपके पार्टनरशिप के ऊपर इफेक्ट क्या होता है.
इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर पहला इफेक्ट अब मैंने कहा टू क्लोज डाउन द बिजनेस एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म आर क्लोज डाउन, पूरे एक्टिविटीज आपके क्लोज होते हैं, पूरा आपका बिजनेस आप पूरे प्रोसेस आप स्टॉप कर देते हैं, एसेट ऑफ द फर्म डिस्पोज कर देते हैं, और लायबिलिटी ऑफ फर्म इज डिस्चार्ज आप कर देते हैं, उसे पेड अप करते हैं, उसके देश का देना है उसका देना तुम पेड अप कर दे, पेड अप करना है दे देना, पेड ऑफ करना उसको, डिस्चार्ज मीन्स पेड ऑफ टू दैट पर्सन। Any balance left out or paying the liability distributed among the partners. That is the effect on dissolution of partnership. Partnership dissolve करने का effect आपके business के ऊपर रहेगा। So dissolution of partnership means complete and closure of partnership business and complete the breakdown of relation among the partners. It is called dissolution of partners. What is the reason? Yeah, what is the circumstance of when which firms is dissolved and condition of dissolutions? What is the reason of dissolution? Dissolutions के reasons क्या हो सकते हैं? कौन कौन से reasons है? तो पहला reason है a partners firm is dissolved on account of the following circumstances. The following reasons we see. जब एक आधा बिजनेस आप बंद करते हैं उसके reasons अलग अलग है. When all partners agree to dissolve the firm, जो पार्टनर डिसाइड करते हैं agree to dissolve the firm when period of firm is expired, आपका फर्म का पीरियड एक्सपायर आपका हुआ है, when the firm are formed in specific venture and venture is completed, स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने फॉर्मेशन किया और आपने उसको उसका टाइम हो चुका है तो उसमें डिसॉल्व द फर्म, दैट इज द रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। when all partners are declared insolvent, when all partners are declared insolvent, automatically our firm will be dissolved to close it. When all business of the firm is illegal, or business is illegal, we should be dissolve our firms. And unlawful firm is compulsory dissolve. Illegal business and unlawful business are compulsory to dissolve. इसमें जो lawful से चलता नहीं, this unlawful business is dissolved now as per partnership act 1932. Then the partnership is it can be dissolved by any partners giving 14 days notice in writing when our partnership firm is dissolved now. The second reasons we see, first reasons, under this reasons we see the partnership firm is dissolved on the account of following reasons. The firm will be dissolved by the court under for the following circumstances when the partner files an suit. When the partners becomes of unsound mind, when partners becomes unsound mind, when partners make the breach of agreement frequently, हमेशा agreement का breach करते तोड़ते हैं करार को, तो partnership firm will be dissolved. When partners has transferred whole his interest in the firm to the third party without any consent of all other partners, of all other partners का कंसेंट सम्मति न लेते हुए इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, when partners are transferred the whole of his interest to the third party without the consent of all the other partners का आप सम्मति लेते नहीं, कंसेंट लेते नहीं, तो you should be that situations the partnership firm will be dissolved. When the business cannot be carried exempt and loss on any other ground which appears to court just and equitable, that is the reason of, that is conditions, this condition the partnership firm is dissolved. तो मैंने आपको बताया कि what is the by court under, the firm will be dissolved by the court under the following circumstances which the partnership is dissolved. तो पहला circumstance में था reasons था unsound mind, partners became of unsound mind. Unsound mind आपका पार्टनर का है, abnormal पार्टनर आपका है, तो अब इसमें dissolve our partners, या वो पार्टनरशिप तोड़ता है, the breach of partnership agreement, इसमें our partnership firm is dissolved. और एक रीजन उसका है when the partners have transferred whole of his interest, उसका जो इंटरेस्ट
विदाउट एनी कंसिस्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को वो क्या करता है, इंटरेस्ट इन द firm to the third party without consent of all other partners when partnership firm will be dissolved, when the business cannot be carried or exempt of loss। ये उसका रीजन है, that is the following above some circumstances the partnership firm is dissolved। Next point we see the goodwill on derivations। Treatment of goodwill similarly to that other assets on derivations। When goodwill appear in the balance sheets, जब goodwill balance sheet में दी जाती है on the date of derivations, it is transferred to debit side of realizations accounts। ये goodwill की ट्रीटमेंट है। When goodwill amount appear in the balance sheets, जब बैलेंस शीट में आपको goodwill का अमाउंट दिया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के आपको डेबिट में उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स। Like any other assets, any amount is realized on sale of goodwill should then be credited to realization accounts like any other assets। When goodwill is appear in the books of the accounts of firm, when goodwill is appear in the firm books of firm on the date of derivations, it is transferred to the debit side of realization accounts। If the goodwill not appear in the books, जब goodwill appear है तो debit side of realization accounts। If the goodwill is not appear in the books, so the questions of transferring it to the debit side of realization account does not arise। When something is realize the sale of unrecorded goodwill, it should be credited to realization accounts। realization account को क्या करना है, उसको आपको क्रेडिट करना है when the goodwill is not appear in the books of accounts। this will be increase the credit balance of realization accounts, which is ultimately transferred to the credit side of partners capital accounts। thus the partners get the benefit of goodwill। इस तरह पार्टनर्स को उस गुडविल का क्या करता है, बेनिफिट मिलता है। ये था आपका गुडविल ट्रीटमेंट। द फॉलोइंग जनरली 3 अकाउंट्स वी ओपन इनटू दिस डिविजन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको 3 अकाउंट ओपन करना, रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। जब कैश बैलेंस दिया तो कैश अकाउंट ओपन करना है, बैंक का बैलेंस दिया तो बैंक अकाउंट ओपन करना है। बस मोस्टली 0.1% जनरल एंट्री आल्सो आस्क इन आवर एग्जामिनेशन। एग्जाम के अंदर आपको जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है। जब जनरल एंट्री पूछी जाएगी, नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करना आपको जरूरी नहीं है, उस पर प्रिपेयर ओनली जनरल ऑफ दैट फॉर्म। उस फॉर्म का आपको इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जनरल एंट्रीज आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उस स्पेसिमम में जो आपको 11th में स्पेसिमम हुआ है जनरल एंट्री का, जनरल का फॉर्म जो है नमूना, उस स्पेसिमम के अंदर आपको उस एंट्री को ड्रॉ करना है। उस वक्त पूरा प्रॉब्लम आपको केयरफुल रीड करना है। फिर भी प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए रियलाइजेशन जो प्रॉफिट आता है उसके लिए रफ में आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट का बैलेंस के लिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपका एक व्हेन द पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट की एंट्री आपको पूछी गई होंगी, तो आपको इसमें प्रिपेयर दिस 3 अकाउंट्स इन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी पूरा प्रॉब्लम में आपको लर्न करना है। इसलिए प्रैक्टिस करते हो, तीनों अकाउंट ओपन करो और बाद में जनरल एंट्री आप पास करते जाओ, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस में परफेक्ट। इसलिए क्या होता है, आपको जनरल एंट्री विदाउट एनी हेल्प आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फास्ट। यानी आपको प्रॉफिट का अमाउंट रफ में टी फॉर्म कैलकुलेट करके रफ का अमाउंट, रफ में आप प्रॉफिट का अमाउंट रियलाइजेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, या लोन का अमाउंट टेकन हो रहे हैं, या एक आधा पार्टनर सॉल्वेंट है उसका अमाउंट आप रफ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट ओपन करके आप उसमें कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री आप पास करते हैं जनरल के अंदर। तो इसका हेल्प होता है तीनों अकाउंट्स का। तो प्रैक्टिस करते वक्त पूरे अकाउंट्स अपने ओपन करना है, बाद में जनरल एंट्री आपको पास करना है। एग्जाम में आपको जनरल एंट्री पूछी गई तो जनरल एंट्री आपको वहां पे प्रिपेयर करना है अकाउंट में। अकाउंट मोस्टली 99% आपको अकाउंट ही पूछा जाता है, दिया जाता है एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करने के लिए। और इफ एनी अदर केस
general entries asked into this topic. So first method is आपके, which is the first method into this simple deduplication method. ये simple deduplication methods क्या होती है? Into this method, what is simple deduplication? Simple deduplications क्या है? और टू हेड्स है deduplication under the insolvency situations. Insolvency situations में how to prepare our deduplication accounts. The simple deduplications means when all partners remain solvent and its firm is dissolved due to any reason, it is called simple deduplications. Simple deduplications में क्या होता है? All partners is solvent. All partners solvent. All partners is solvent. पूरे पार्टनर इसमें सॉल्वेंट होते हैं और डिसोल्यूशन ऑफ अंडर इनसॉल्वेंट सिचुएशन में अंडर द इंसॉल्वेंसी में एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंस हो सकता है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंस हो सकते हैं, या ऑल पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? इंसॉल्वेंट हो सकते हैं. एक, दो और ऑल. इसलिए डिसोल्यूशन अंडर द सॉल्वेंसी सिचुएशंस ऑल पार्टनर्स, वन पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो सकता है, या टू हो सकता है, या थ्री हो सकता है. बोथ पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट इनटू दिस डिसोल्यूशन अंडर द सॉल्वेंसी सिचुएशंस में. और सिंपल डिसोल्यूशंस में क्या है? ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट. मोस्टली आपको सिंपल डिसोल्यूशन के ऊपर ही प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आता है. इन केस डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशंस, उसमें एक आधा पार्टनर प्रॉब्लम के अंदर आपको कहा जा रहा है कि वन पार्टनर आर, सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड पार्टनर आर इंसॉल्वेंट. उसका प्रोसीजर आपको करना पड़ता है, उसका अकाउंट पहले आपको क्लोज करना पड़ता है. उसके बाद में उसका जो डिफरेंस है जो आने वाला है, फर्स्ट वी क्लोज द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, उसका डिफरेंस ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रेशियो कैलकुलेट करके. ये सिचुएशन है, दो पार्टनर सेम सिचुएशंस, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर उसका अकाउंट आप पहले क्लोज करना, उसका जो डिफरेंस है रहे हुए पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना. थर्ड, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, वही सिचुएशंस, सभी पार्टनर को आपको जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंस, क्लोज द फर्स्ट अकाउंट्स, एंड जो डिफरेंस आ रहा है वो उनके रेशियो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंसॉल्वेंसी का. और एडजस्टमेंट आपको दिया जाता है कि इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या है? हिज लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स. उससे एसेट से उसका देना ज्यादा होता है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन. उसका मीनिंग मैंने इसके पहले आपको बताया. सॉल्वेंट पर्सन में क्या होता है? हिज एसेट्स इज मोर देन लायबिलिटी, ज्यादा होती है लायबिलिटी से. यानी एसेट उसकी 100 है, लायबिलिटी उसके 50 रुपए उसको देना है, तो दे सकता है उसके एसेट को सेल करके, या उसके एसेट में से वो रिफंड कर सकता है दैट पर्सन आउटसाइडर को या मनी लेंडर्स को. इंसॉल्वेंसी पर्सन में क्या होता है? ही पर्सन इज नॉट पेबल दैट अमाउंट्स, वो लोन वापिस नहीं कर सकता है. यानी हिज लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स. एसेट से उसका देना ज्यादा है. 100 रुपए उसके एसेट से देना उसको 200 रुपए है, तो एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज उसको पे करना है आफ्टर डिसॉल्व ऑफ द फर्म, इट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन. सो ये दोनों में से, दोनों मेथड के ऊपर, दोनों हेड्स जो आपको इसके अंदर लर्न करना है, तो दोनों के ऊपर आपको प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में दिए हुए उसे भी कैलकुलेट करो. तो हाउ टू सिचुएशन, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन्स, व्हिच वी सी इनटू दिस टॉपिक डिसोल्यूशन. इसमें आपको पढ़ना है. इंपॉर्टेंस ये है इसके अंदर कि इस टॉपिक में जो है, when all partners remain solvent and the firm is dissolved due to any reason, it is called simple dissolution. उसको simple dissolution कहा जाता है. On the dissolution of the firm, the following ledger accounts are open into this dissolution. खाली अकाउंट्स आपको ओपन करना है. realization accounts, all partners capital accounts, all partners current account if current account balance is given. लोन अकाउंट कहाँ गए? तो लोन अकाउंट्स, डिफिशियंसी अकाउंट, कैश एंड बैंक. मोस्टली विच वी प्रिपेयर ओनली 3 अकाउंट्स. ज्यादा करके आपको 3 ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट. बैंक का बैलेंस है तो बैंक अकाउंट ओपन करो, कैश किया जाए तो कैश ओपन करो. यानी मोस्टली 3 अकाउंट्स आपको ओपन करना है. इफ गिवन इन करंट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस आपको पार्टनर का दिया है तो आल्सो ओपन करंट बैलेंस, या आस्क इन ओपन लोन अकाउंट्स, आस्क इन ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट्स, आस्क इन डिफिशियंसी अकाउंट्स. कहा गया तो ही ओपन करना है, वरना डायरेक्ट एंट्री आप कर सकते हैं.
इन 3 अकाउंट के अंदर रियल एस्टेट अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट्स, उसमें ओनली प्रिपेयर द 3 अकाउंट्स। उसको क्लोज करके उसका सेकंड एफ आपको बैंक को करना है। सेकंड एफ क्रेडिटर्स अकाउंट से क्रेडिटर्स अकाउंट का जो बैलेंस है आपको ट्रांसफर टू बैंक लोन, लोन है तो ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, या अदर जो अकाउंट्स आपने ओपन किया करंट अकाउंट का बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैंक अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है। स्टेप कौन से? पहले क्लोज द रियल एस्टेट अकाउंट्स, रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट जो लॉस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट क्लोज करके करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। बैंक की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस विल बी टेली नाउ, बोथ साइड्स आर इक्वल नाउ इनटू दिस चैप्टर नंबर 6 में। डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट आपका टैली होता है विदाउट एनी डिफरेंस, यानी दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल आती है, बोथ साइड्स आर इक्वल, समझ लेना आपका प्रॉब्लम पूरा बराबर है, आपके ट्रांजेक्शंस पूरे राइट, ये उसका टैली है। ये समझ में आ रहा है आपका प्रॉब्लम बराबर है, हर प्रॉब्लम का टैली है। कौन सा प्रॉब्लम आपका गलत हुआ तो आपका बैलेंस शीट टैली होता नहीं, या आपका बैंक अकाउंट टैली होता नहीं विदाउट एनी डिफरेंस। जो प्रॉब्लम के जो रूल्स है अलग अलग टॉपिक में, हर इसका क्या है टैली है। इसलिए आपको एग्जाम के अंदर हॉल में समझ सकते हैं कि आप मेरा आउट ऑफ पेपर है 80 आउट ऑफ 80 मेरे को मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 का पेपर है, 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलना चाहिए, आप डेफिनेटली कह सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में आपका आंसर्स बराबर है, आपकी स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं तो यू शुड बी गेट 100% टैली। आपका पूरा प्रॉब्लम 101% टैली होता है, स्टेप बाय स्टेप है। वही मैं हर टॉपिक में मैंने आपको बताया। पिछली टॉपिक आप देखिए, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने दिया है उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लर्न करके दिया कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम। उस स्टेप से आप जाते हैं तो 101% आपका प्रॉब्लम टैली होता है। इस टॉपिक के अंदर हुई आप स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, उस स्टेप से आप फॉलो करो, 101% आपका एक ही एडजस्टमेंट रहता नहीं, बराबर आप कैलकुलेट करते हो उसको, स्टेप बाय स्टेप जाते थे 1 2 3 4 जो स्टेप मैंने प्रिपेयर किया, ओपन अकाउंट, एडजस्टमेंट के टिक मार्क, बैलेंस कैसा लेना है, कौन सा अकाउंट फर्स्ट क्लोज करना है, और लास्ट अकाउंट विदाउट एनी डिफरेंस आपका किस तरह टैली होता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको बताने वाला, तो जरूर देखिए आगे पूरा डिटेल्स में, तो फॉलो कीजिए। सो वी सी अगेन डिसोल्यूशन अंडर सिंपल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन अंडर द इनसॉल्वेंसी सिचुएशंस। इनसॉल्वेंसी सिचुएशंस में किस तरह वी शुड मेंटेन आवर अकाउंट्स इनटू दिस चैप्टर। सो रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. How to prepare the realization accounts and what is, but before we have see the meaning of insolvency, the deduction under the solvency insolvency situations पे insolvency क्या होता है? solvency आपको मालूम है कि solvency person is liable to pay that debts, उसका जो कर्ज होता है, उसका जो देना होता है वो दे सकता है. his liability is his assets is more than liability, it is called solvent person. Insolvent person means his liability is more than assets, this is called insolvent persons. इसलिए solvent persons will be liable to pay all their debts, उसका पूरा डेब्स वो दे सकता है, तो insolvent उसे कहते हैं solvent person. और insolvency में वो आपका डेब्ट वापिस नहीं कर सकता है, उसके एसेट बेचने के बावजूद भी उसका लोन उसका बाकी रहता है, इट इज कॉल्ड insolvent person. What is insolvency? A person whose liability is exceed his asset is called insolvent. मैंने आपको पहले ही कहा था कि insolvent person means whose liability is more than assets. His liability is more than assets. A person whose liabilities is more than assets is called as insolvent person. A partner whose capital account show debit balance and who is not in the position to repay the amounts, it is called insolvent persons. And solvent, a partner who is in position to meet his capital deficiency is called as solvent person. ये भी another word में आपको इसका definition आप लिख सकते हैं इस टाइप में, यानी solvent person means a partner who is in a positions to meet his capital deficiency is called a solvent person. So definitions या insolvent partners capital accounts. What is deficiency accounts when you prepare into this problem also? Partners का deficiency account आपको prepare करना है.
The deficiency of insolvent partners capital accounts. The deficiency of insolvent partners capital accounts is delayed within the one of the following two ways. डिले यानी टू सॉल्व, यानी उसको सॉल्व करना, उसको कैलकुलेट करना. इफ द डिफिशियंसी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस लॉस, इट इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. डिफिशियंसी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफिशियंसी अकाउंट के अंदर. व्हेन द पार्टनर आर इनसॉल्वेंट सिचुएशन में क्या करना है? इफ द डिफिशियंसी इज कंसिडर्ड एज बिजनेस लॉस, if the deficiency is considered as business loss, it is a share by the solvent partners in their profit sharing ratios. If the deficiency is considered as specific loss, it is shared by solvent partners in their capital ratio decided to Garner and Murray case. Garner and Murray case एक मेथड सबके तीस ऑथर ने इसके ऊपर डिसोल्यूशन के ऊपर एक मेथड्स दी गई. उस मेथड्स का आपको स्टडी नहीं करना है. मरी एंड गार्नर एंड मुरी, ये जो ऑथर थे, उन्होंने जो कहा है डिसॉल्व द पार्टनरशिप के बारे में, इस मेथड से आपको कैलकुलेट करना नहीं इस सिलेबस में. ओनली वी शुड कैलकुलेट सिंपल डिसोल्यूशंस. सो 12 कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिलेबस, हेंस द प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक शुड बी सॉल्व एज पर फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट मेथड मीन्स सिंपल डिसोल्यूशन मेथड. सिंपल डिसोल्यूशन मेथड से आपको इसमें कैलकुलेट करना है. गार्नर एंड मरी का जो रूल्स उन्होंने कहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, उस रूल्स को आपको फॉलो नहीं करना है. उसमें ओनली फॉलो द रूल्स ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन. सिंपल डिसोल्यूशन से आपको कैलकुलेशन करना है. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस अकाउंट्स? विच वी सी द रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट. which we see how to prepare, what is the purpose of this realization accounts. realization अकाउंट में आपको इसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है. इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें आपको उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अपने इसके पहले के जो चैप्टर थे उसमें देखें. इनटू दिस चैप्टर which we see the dissolution of the firm, which we dissolve our firm, which we realize our assets or liability which we realize now into this topic. So which we open realization account. इसलिए realization account आपको यहाँ पे open करना पड़ता है. The purpose of this account to show the profit and loss in the realizations and is there for a nominal accounts. इसलिए उसको nominal accounts कहा जाता है. Which we realize our assets and liabilities. The purpose of this account to show the profit and loss on realizations and it is there for a nominal account. इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट्स भी अनदर वर्ड्स में कहा जाता है. While the preparing of realization accounts, all sundry assets and third party liabilities are transferred now. क्या है पहला रूल? क्या रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो कि ध्यान में रखना है कि while the preparing of realization accounts, all sundry assets and third party liabilities are transferred. उसको आपको ट्रांसफर करना है. यानी लायबिलिटीज को आपको क्या करना है? पेड ऑफ करना है या डिस्पैच करना है. द रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश. रियलाइजेशन मीन्स एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू कैश. एसेट को आपको कैश में कन्वर्ट करना है. इसलिए वी शुड प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट्स. The realization is the process of converting assets into the cash. ये प्रोसेसिंग है रियलाइजेशन अकाउंट्स. Assets realized are credited and liabilities settled are debited to his accounts. When realization accounts close by transferring the gain means profit, transferring the gain, transferring the loss, realizations to the partners capital accounts, करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन शॉर्ट में मुझे आपको बताना है, वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट्स, वी कन्वर्ट एसेट्स इनटू द कैश एंड व्हेन वी क्लोज द अकाउंट. जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं, आपका प्रॉफिट आता है तो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करो, या करंट अकाउंट आपको दिया हुआ इफ गिवन इन क्वेश्चन
करंट अकाउंट का बैलेंस दिया तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डायरेक्ट आप ट्रांसफर करो प्रॉफिट का अमाउंट, या करंट अकाउंट आपके पास है तो करंट अकाउंट को पहले फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करो, या लॉस है तो लॉस ट्रांसफर करना। करंट अकाउंट नहीं है तो फिर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयरिंग रेशियो में। तीनों पार्टनर को आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यानी पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड लॉस, आपको ओल्ड पार्टनर को उनके रेशियो में उनके अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। लॉस है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के, और प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट्स, तीनों पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में। ये रूल्स है उसका फॉलो करने का। विद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑब्लिक करंट अकाउंट्स जो आपको दिया हुआ है, और करंट अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट डेबिट में डिफरेंस आया तो उसे कहते हैं प्रॉफिट, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो उसे कहते हैं लॉस। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज कॉल्ड लॉस। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रॉफिट व्हाट इज लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ फ्रेजेस में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन वन वर्ड, राइट इन फ्रेजेस, व्हाट इन टर्म्स। तो उस सेंटेंस को जो आपको एक मीनिंग देना है, रियलाइजेशन अकाउंट का सपोज आया आपको, रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर है तो ऐसा आ सकता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज रियलाइजेशन प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज लॉस बैलेंस, इट इज अ लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी में पूछा जा सकता है। ये आपका थियोरेटिकल टॉपिक में आपको थ्योरी के इसके ऊपर मैं आपकी थ्योरी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू राइट द डिसोल्यूशंस, विच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इनटू दिस डिसोल्यूशंस। थ्योरी बहुत जरूरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल आपको देखना है इसके अगले वीडियो के अंदर। तो पहले थ्योरी पूरे लर्न करते हैं। पहले आपने सुना है रियलाइजेशन अकाउंट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं आप, एसेट्स क्या करते हैं पूरी कैश में कन्वर्ट करते हैं इस रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर। व्हाइल द प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट्स ऑल सन्ड्री एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू द कैश, converting assets into cash. The realization account is process of converting assets into the cash. Asset realize the credit and liabilities settle in the debit side of these accounts. Second account क्या है, we should prepare partners capital accounts. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा लेजर की तरह आपका स्ट्रक्चर है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर, 3 पार्टनर का नाम, डेबिट में, क्रेडिट में, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स अकाउंट। इस लेजर फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना है सभी अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेकंड अकाउंट जो है इसके बारे में आपको बताता हूं कि कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट्स बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको बैलेंस दिया पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, उसके डेबिट में आपको लिखना है, लायबिलिटी साइड में दिया तो आपको क्रेडिट में लिखना है, बिकॉज लायबिलिटी साइड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट साइड ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। एसेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है और कैश आपको डेबिट में दिया, कैपिटल आपको डेबिट में दिया हुआ है एसेट साइड में, तो राइट डाउन टू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। और आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या आपका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में दिया है, तो लायबिलिटी साइड क्या होती है, इट इज क्रेडिट साइड। तो उस अकाउंट के आपको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय और टू ये जो है कस्टमाइज्ड वर्ड है, ये फ्रीक्वेंटली राइट डाउन इन आवर अकाउंटेंसी। जब अकाउंट लिखते हैं तो डेबिट में आप 2 लिखते हैं और क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं। कस्टमाइज्ड वर्ड्स है, वो वारंवार उसमें यूज किया जाता है। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट मीन्स 2, क्रेडिट मीन्स बाय। डेबिट में आज 2 लाख लिखना है, उस वर्ड क्या है, टू फर्नीचर, टू प्लान, टू कैश, टू पार्टनर्स कैपिटल वगैरह। डेबिट में रहता बाय कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स अमाउंट इज गिवन टू आवर बैलेंस शीट्स। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल का बैलेंस दिया तो उनके क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, बिकॉज लायबिलिटी साइड ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, सो राइट डाउन टू पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय आपको यूज करना है, क्रेडिट में बाय लिखते हैं और डेबिट में 2 लिखते हैं। और वही
बैलेंस आपको एखाद्या पार्टनर का एसेट साइड में दिया हो, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, तो राइट डाउन टू देयर डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह लिखा जाता है इसके अंदर। ये रूल्स है फॉलो करने के, यानी liability side show credit balances and asset side show debit balances, so write down to the debit side of that partner's account when balance is given to our asset sides, when balance given into our liability side, so write down liability side show the credit balance, so write down to their credit sides। इसलिए liability side credit में होती है तो credit में ट्रांसफर होगा, डेबिट assets में डेबिट होता है डेबिट साइड में वो बैलेंस आपका कैपिटल का ट्रांसफर होगा। ये थोड़ा रूल्स स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है जल्दी कि डेबिट में क्यों लिखना है, क्रेडिट में क्यों लिखना है। उसका रीजन ये है कि एसेट साइड शो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड शो क्रेडिट बैलेंस, सो राइट डाउन टू द क्रेडिट साइड ऑफ दैट पर्सन्स अकाउंट्स, कैपिटल के क्रेडिट में, एसेट साइड में तो पार्टनर्स के डेबिट में। ये होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल। ऑल्सो ट्रांसफर रिजर्व एंड फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस एंड रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस also transfer to this accounts। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का लॉस है, कैपिटल अकाउंट का आपको ट्रांसफर करना है, या बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एसेट में दिया हुआ तो डेबिट साइड में आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशो, पार्टनर जो रेशो दिया होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, मेरे को एक बात आपको बतानी है इस थ्योरी में कि एखादे प्रॉब्लम के अंदर आपको पार्टनर का रेशियो ही दिया नहीं, कहा नहीं गया है कि इक्वल है या 3:2:1 में या 1:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो आपको मेंशंस नहीं किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इक्वल आपको मेंशंस किया है या कुछ नहीं कहा, इक्वल नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, रेशियो आपको दिया नहीं, तो वी शुड बी एज्यूमिंग दैट सिचुएशंस वी शुड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इन इक्वल रेशियो। उस समय तीनों पार्टनर को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, यह अकाउंटिंग रूल्स है। कभी कभी नहीं दिया जाता है तो स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं करना है, इट इज साइलेंट एडजस्टमेंट, इट इज हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट होता है, इसमें एज्यूम करना है, उसको ग्रेड करना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूट टू देयर रेशियो इक्वली, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो इक्वली आपको कंसिडर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1930 जो है आपने देखा है उसमें देखने वो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किस तरह आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरह 6 मंथ का डिस्ट्रीब्यूट करता है 6%, उस टाइप में आपको व्हेन द पार्टनर शेयरिंग रेशियो इज साइलेंट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इनटू देयर इक्वल रेशियो, इक्वल समान को दे देना है तीनों को। सही, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में अकाउंट्स आर क्लोज आफ्टर पार्टनर्स रिसीव कैश और पे कैश, जब कैश उसका रिसीव होता है या पे होता है तब उसको आपको क्लोज करना है पूरा। इस तरह कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, क्रेडिट में डिफरेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद में इफ करंट अकाउंट इज ओपन नाउ, जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाता है विच बी ओपन द करंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट में आपको करंट अकाउंट दिया और कैपिटल का भी आपको बैलेंस दिया हुआ है तो आपको करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। करंट अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट विल बी प्रिपेयर करंट अकाउंट्स, आपको प्रिपेयर करने के बाद उसका जो क्लोजिंग जो आपको पहले करंट अकाउंट आपको क्लोज करना है उसका डिफरेंस आपको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, जो क्या फर्क आता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है जो इसमें और उसमें ओपन असो करंट अकाउंट, इफ करंट अकाउंट इज ओपन, if current account is open, if current account balance is given, current account balance is given, in balance sheets, बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ करंट अकाउंट का उसे ओपन करंट अकाउंट, ओपन करंट अकाउंट, तब आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। जब आपको बैलेंस शीट में दिया है तो उसमें ओपन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन व्हेन द फिक्स कैपिटल मेथड इज गिवन, आपको फिक्स कैपिटल मेथड से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, फिक्स कैपिटल मेथड इज गिवन विच वी ओपन करंट अकाउंट्स, आपको मेथड्स मेंशंस किया है, फिक्स कैपिटल मेथड से कैलकुलेट करो उसमें भी ओपन करंट अकाउंट्स। आपने देखे पहले पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन जो पार्टनरशिप में आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल, उसमें फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, वो वीडियो आप देख लो वहां पे जाकर। उस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में हाउ टू कैलकुलेट
capital amount under fixed capital method, how to calculate amount of fluctuating capital methods, amount of capital। दो मेथड द्वारा कैपिटल का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करना है, ये मैंने इसके पहले के जो पहला टॉपिक में आया मेरा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने दिया है मेथड्स ऑफ कैपिटल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको समझ में आएगा व्हाट इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स क्या होता है। व्हेन द फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस इज गिवन व्हिच वी प्रिपेयर करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, इस रिजोल्यूशन के अंदर आपको दिया जाता है करंट अकाउंट के बैलेंस, या कहा जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, और दोनों का कैपिटल आपको दिया जाता है पार्टनर्स का, तो इसमें ओपन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन डेसिफिकेशंस। तो इस टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड्स के लिए मेरा इसके पहले का चैप्टर नंबर 1 में जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा उस मेथड्स का, टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड्स। 2 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप डिटेल्स में आप देख लो, लर्न करो उसे और सॉल्व करो। तो वीडियो जब आप देखते हैं मेरा, तो साथ में एक रफ पेज रखते जाओ, रजिस्टर सामने रखते जाओ, अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसको राइट डाउन करना है, फिर आपको समझ में आता है हाउ टू कैलकुलेट नाउ। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसके अंदर हर टॉपिक का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इफ यू सी गोइंग टू बैक वीडियोस एंड यू सी डिटेल्स अबाउट दैट टॉपिक्स, दैट मेथड्स। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, व्हेन कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, या फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको कैपिटल करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है, आपको बैलेंस दिया जाता है, आपको ये नहीं सोचना कि सर अभी ओपन करना है नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन इनटू आवर बैलेंस शीट, सो वी प्रिपेयर करंट अकाउंट्स, जब आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना ही करना है। ओके, करंट अकाउंट शो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट कभी डेबिट में बैलेंस बताता है या कभी क्रेडिट में, यानी कैसेट साइड में भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस आ सकता है बैलेंस के अंदर, और लायबिलिटी साइड में भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस आ सकता है। यानी लायबिलिटी साइड शो क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस शो एसेट साइड शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस। At the end of the closing balances of partner current account are transferred to partners capital account। मैंने इसके पहले कहा, जब आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जब आपको अकाउंट दिए तो पहले उसमें क्लोज द पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है तो वो बैलेंस आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को देना है। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना है और उसका बैलेंस आपको बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ये प्रोसीजर है, एंड क्लोज करते वक्त आपको रियलाइज्ड अकाउंट क्लोज करना है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट या लॉस जो आया वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और उसका जो बैलेंस है ट्रांसफर टू कैश अपने बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपके टैली हो जाती है। ये होगा आपका रियलाइज्ड अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स। इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, कुछ भी ओपन करंट अकाउंट्स, एंड लोन अकाउंट इज गिवन, लोन अकाउंट बैलेंस है, व्हेन यू प्रिपेयर द लोन अकाउंट, जब आप लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या डिफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया, या ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया, तो उसमें हाउ टू गिव द ट्रीटमेंट इन दैट अकाउंट्स। उस लोन अकाउंट आपको सपोज आपने ओपन किया हुआ है, जो पार्टनर्स ने जो लोन लिया हुआ है, लोन टेकन फ्रॉम बिजनेस, जब लोन लेता है पार्टनर्स, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइंस। क्रेडिट बैलेंस of partners loan account is not transferred to realization account credit side। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को कौन सा अकाउंट, लोन का अमाउंट जाता नहीं लिखना चाहिए, डिड नॉट अपियर इन दिस रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन। आपको कहा गया एडजस्टमेंट के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन, जब पार्टनर्स लोन का अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसका सेकंड डेबिट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करना। शॉर्ट में आपको बताना है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट साइड, बट इट इज पेड ऑफ थ्रू द सेपरेट अकाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल अमाउंट्स ओन टू आउटसाइडर। आउटसाइडर मीन्स थर्ड पार्टी, बिल्स पेपर क्रेडिट और जो आपके रहते हैं उसे आउटसाइडर आप कहते हैं, मनी लेंडर्स ऑफ द फॉर्म। हाउएवर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट डायरेक्टली। तो लोन अकाउंट आपने ओपन किया होगा तो लोन अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट को आपको ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का, तो विच बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स के करंट अकाउंट को लोन अकाउंट का ट्रांसफर बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है, क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। दैट इज द रीजन ऑफ
व्हाई वी डिड नॉट ट्रांसफर लोन अमाउंट इनटू दिस रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये कारण उसका है। उसके बाद में आपको क्लोज करना है बैंक अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस आपको एसेट्स में दिया जाता है, एसेट्स या डेबिट होते हैं तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है टू बैलेंस पार्ट ऑफ वेन बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट से कैश होती है, बैंक बैलेंस आपका कैश होता है, इससे डेबिट से क्रेडिट साइड में जाता है बाय बैलेंस पार्ट आपको लिखना है। आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग ऑल अकाउंट्स टू द कैश अकाउंट्स, कैश यानी बैंक अकाउंट्स, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द अकाउंट्स, सब अकाउंट जब आपके क्लोज हो जाते हैं, उसमें पूरा मेल होता है, प्लस प्रॉफिट लॉस आप ट्रांसफर करते हैं, उसका बैलेंस सेकंड अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं, यानी रियलाइजेशन का बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस वो आप कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल या लोन अकाउंट आप क्लोज करके वो बैंक को ट्रांसफर जब करते हैं उसे कहते हैं आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द अकाउंट्स टू द बैंक अकाउंट द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट्स मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ड्यू द पार्टनर्स, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल इनटू दिस बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट का दोनों साइड्स का बैलेंस जब आप अनदर अकाउंट्स के बैलेंस जब बैंक को आप ट्रांसफर करते हैं तो बोथ साइड्स आर इक्वल इनटू दिस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में दोनों साइड आपकी इक्वल आता है। ये है इस गणित का टैली। तो इस तरह इनटू दिस वीडियो विच वी सी इनटू दिस टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम, इसमें देखिए कि हाउ टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स एंड मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप। So into this topic, next we see the specimen of realization accounts, how to prepare now, the specimen of partners capital accounts, the specimen of current account, specimen of bank of cash accounts. So most important specimen we discuss now in next video, realizations accounts. Realization accounts, why we prepare realization accounts, उसका रीजंस क्या है, वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, द एसेट्स विल बी ट्रांसफर इन कैश, दैट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, दैट इज द एम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब एसेट्स और लायबिलिटी इसका रियलाइजेशन करने के लिए कुछ भी प्रिपेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोफॉर्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स, उसका डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर नाउ टू स्टॉप हियर, ठीक है, रुकते हैं, थैंक यू।